کسی خون خرابے کے حاصل کر سکیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ تنگوت کاروان سرائے کے مالک سے کہتا ہے اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کو قتل کر دوں گا۔ اس پر کاروان سرائے کا مالک خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ مشروب لے کر دلی دمیر اور حلیمہ سلطان کے پاس جاتا ہے۔ اسی دوران آپ دیکھیں کہ حلیمہ سلطان اور دلی دمیر کاروان سرائے کے کمرے میں موجود ہیں اور وہ مرتکین کی طرف سے بھیجی گئی معلومات کو ایک دوسرے صفحے پر بھی لکھ رہی ہیں تاکہ اگر راستے میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ان کے پاس اس معلومات کی ایک کاپی موجود ہو۔ جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ طبیب عارف غنی کی غار میں تیمور کا علاج کر رہے ہیں۔ اسی دوران تیمور کی سانس رک جاتی ہے۔ طبیب عارف کہتے ہیں کہ ہم تیمور کو کھو رہے ہیں اور پھر وہ اللہ کا نام لے کر زور زور سے تیمور کے سینے پر مکے مارتے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نام شافی کی برکت سے اس نوجوان کو شفا دے۔ اسی دوران تیمور کی سانس بحال ہو جاتی ہے اور وہاں موجود تمام لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں کہ حلیمہ سلطان دلی دمیر سے کہتی ہیں کہ میں نے تمام معلومات دوسرے صفحے پر بھی لکھ لی ہیں۔ دلی دمیر حلیمہ سلطان سے کہتے ہیں کہ میری بچی ان معلومات کو ایسی جگہ پر چھپانا تاکہ کوئی اور ان کو تلاش نہ کر سکے۔ اس پر حلیمہ سلطان ان کو کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، میں ان کو ایسی جگہ چھپاؤں گی جہاں کوئی بھی ان کو تلاش نہیں کر سکے گا۔ اسی دوران کاروان سرائے کا مالک ان سے کہتا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کاروان سرائے کی مالک کی آواز سن کر حلیمہ سلطان وہ کاغذات جلدی جلدی چھپا دیتی ہیں اور پھر دلی دمیر اس کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جب وہ اندر آتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جس پر دلی دمیر کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کاروان سرائے کا مالک ان سے کہتا ہے کہ یہ شربت ہماری طرف سے آپ کے لیے ہے۔ اس کے بعد کاروان سرائے کا مالک دلی دمیر اور حلیمہ سلطان کو وہ شربت دینے کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد دلی دمیر اور حلیمہ سلطان وہ نشہ آور مشروبات پی لیتے ہیں۔ دلی دمیر حلیمہ سلطان سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سو جائیں، میں دروازے پر پہرا دوں گا، اور پھر دلی دمیر کمرے سے باہر آ جاتے ہیں اور دروازے کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں جبکہ تنگوت ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نویان کے بھیجے گئے سپاہی قبیلے کے پاس موجود ہیں جبکہ حائمہ خاتون اپنے خیمے میں آرام کر رہی ہیں۔ گندگدو اور سلجان خاتون بھی حائمہ خاتون کے خیمے میں کھڑے ہیں۔ گندگدو سلجان خاتون سے کہتا ہے کہ سلجان میں نے تمہارے حقوق کو پامال کیا ہے، میں نے تمہارے اوپر سختی کی ہے، میں اس پر تمہارے سے معافی مانگتا ہوں۔ پھر گندگدو سلجان خاتون سے کہتا ہے سلجان میں چاہتا ہوں کہ میری بھی اولاد ہو، میں اپنی نسل کو بڑھانا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گندگدو کی یہ بات سن کر سلجان خاتون بہت دکھی ہو جاتی ہیں۔ گندگدو سلجان خاتون سے کہتا ہے کہ اگر تم اس پر راضی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اس پر راضی نہیں ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم اس بارے میں سوچ لو۔ اس کے بعد گندگدو وہاں سے نکل جاتا ہے اور ارطغرل کے پاس جاتا ہے۔ ارطغرل گندگدو کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بھائی آپ ابھی تک سوئے کیوں نہیں ہیں؟ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ کل جرگے میں میرے بھائی کی موت کا مطالبہ کیا جائے گا، میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ اس پر ارطغرل گندگدو سے کہتا ہے بھائی چھوڑیں ان باتوں کو، آپ بیٹھ جائیں۔ اس پر گندگدو ارطغرل کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل گندگدو سے کہتا ہے کہ بھائی میں آپ سے بھابھی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر گندگدو ارطغرل سے کہتا ہے مجھے اولاد چاہیے اور مجھے ایک پرسکون گھر چاہیے، البتہ میں سلجان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں نے اس کو بتایا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ اس پر راضی ہوئی تو میں اس کے ساتھ رہوں گا، اگر وہ اس پر راضی نہ ہوئی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ پھر گندگدو ارطغرل سے کہتا ہے ارطغرل خدا کا واسطہ ہے، کل جرگے میں تمہاری موت کا فیصلہ ہونا ہے اور یہاں تم کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ جس پر ارطغرل گندگدو سے کہتا ہے بھائی اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ پھر ارطغرل گندگدو سے کہتا ہے بھائی سلجان خاتون کو اپنے خیمے سے نکال کر اچھا نہیں کیا، آپ بے شک دوسری شادی کریں لیکن سلجان خاتون کو طلاق نہ دیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سردار خوشنود حائمہ خاتون کے خیمے میں جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں میری بہن میرے ہاتھ سے تمہیں خنجر لگا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس پر حائمہ خاتون سردار خوشنود سے کہتی ہیں میرا بیٹا قاتل نہیں ہے، اس نے غدار کوچبش کو قتل کیا ہے اور اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ آپ کے سپاہیوں کے غضبناک ہونے کے باوجود ارطغرل دوبارہ قبیلے میں آیا، وہ اس لیے واپس آیا کہ اس کو آپ کے انصاف پر یقین ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندگدو قید خانے میں ارطغرل کے پاس موجود ہے۔ ارطغرل گندگدو سے کہتا ہے کہ بھائی کرابیک پر نظر رکھیں، جب نویان نے مجھے پکڑا تھا تو کرابیک بھی وہاں موجود تھا۔ یہ سن کر گندگدو حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی جب میرے ہاتھ میں کیل ٹھونکی جا رہی تھی تو کرابیک دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ یہ سن کر گندگدو کہتا ہے کہ یار اب ہم کیسی جہنم میں پھنس گئے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی آتا ہے اور گندگدو سے کہتا ہے کہ سردار خوشنود حائمہ خاتون سے ملنے ان کے خیمے میں گئے ہیں۔ یہ سن کر گندگدو حائمہ خاتون کے خیمے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان کے بھیجے گئے سپاہی آہستہ آہستہ قبیلے کو ہر طرف سے گھیر رہے ہیں۔ جب گندگدو حائمہ خاتون کے خیمے میں پہنچتا ہے تو سردار خوشنود گندگدو کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گندگدو کہتا ہے کہ ماموں آپ کو راحت نہیں مل رہی، آپ جرگے میں جو
फैसला करने जा रहे हैं वो दोनों कबीलों को मफलूज कर देगा। आप हकीकत को समझें और अर्तगल का साथ दें। इसके बाद सरदार खुर्शीद वहाँ से चले जाते हैं और गुंदुगदू जाकर हाइमा खातून के पास बैठ जाता है। गुंदुगदू हाइमा खातून से कहता है, अम्मी जान, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अर्तगल को मार सके, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। नाज़रीन, इसी दौरान हाइमा खातून को जख्म में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है और हाइमा खातून अपने जख्म पर हाथ रखती है। जब गुंदुगदू चादर हटाता है तो हाइमा खातून के जख्म से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। ये देखकर गुंदुगदू खौफजदा हो जाता है और तबीब खातून को बुलाता है और उससे कहता है, जल्दी से तबीब आरिफ को बुलाएं। इसके बाद तबीब आरिफ हाइमा खातून के खेमे में जाते हैं और वो गुंदुगदू, सलजान और रोशनी को खेमे से बाहर भेज देते हैं और हाइमा खातून का इलाज करना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, इसी दौरान आप देखें कि सरदार खुर्शीद अर्तगल के पास कैद वाले खेमे में जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुमने मेरे बेटे तैमूर को कत्ल किया है? इस पर अर्तगल कहता है कि मामू, मैं आपसे क्या बात करूं, कराबे गद्दार कल जो नुयान के दस्तरखान पर मौजूद था आज वो आपके खेमे में मौजूद है, आप उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। इसके बाद अर्तगल सरदार खुर्शीद से कहता है कि मैंने आपको बोला था कि नुयान कुत्ता सारी सर्दियों में जंग का इंतजार नहीं करेगा और वो किसी भी वक्त हमारे ऊपर हमला कर देगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब आप अपना जमीर हल्का करने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इसके बाद सरदार खुर्शीद उस खेमे से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि आलिया और गुंचा गुल हाइमा खातून को देखने उनके खेमे में जाती हैं। इसके बाद आप इस किस्त में देखें कि मंगोल सिपाही कबीले पर हमला कर देते हैं और सिपाहियों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक मंगोल सिपाही तीर से गुंदुगदू पर हमला करता है, जो तीर गुंदुगदू के बजाय उसके साथ खड़े सिपाही को जाकर लगता है। गुंदुगदू एकदम से कहता है, हमला हो गया है। गुंदुगदू की आवाज सुनकर सलजान, आलिया और खेमे में मौजूद बाकी लोग भी अपनी तलवारें उठा लेते हैं और सलजान तबीब आरिफ से कहती है, आप अम्मी जान का ख्याल रखें। इसके बाद मंगोलों के दरमियान और कबीले के सिपाहियों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। अर्तगल को जब मंगोल सिपाहियों की आवाजें जाती हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चीखता है। इसके बाद मंगोल सिपाही कबीले में मौजूद बहुत सी खवातीन को और बच्चों को कत्ल कर देते हैं। नाज़रीन, गुंदुगदू और महरदीन ने कबीले में सिपाहियों की लड़ाई से बचने के लिए बहुत से सिपाहियों को कबीले से बाहर भेज दिया था। कबीले में बहुत कम सिपाही रह गए थे, जिसकी वजह से मंगोल सिपाही बहुत से लोगों को कत्ल कर देते हैं। बहुत से मंगोल सिपाही हाइमा खातून के खेमे के बाहर जमा हो जाते हैं और वो हमला करते हैं। गुंदुगदू उनको अकेले रोकने की कोशिश करता है और बहुत से मंगोल सिपाही को कत्ल कर देता है, लेकिन मंगोल सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कुछ मंगोल सिपाही खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं और खेमे के अंदर आलिया, सलजान, गोंचा गुल और रोशनी मंगोल सिपाहियों का मुकाबला करते हैं। नाजरीन, इसी दौरान अर्तगल के खेमे की हिफाजत करने वाला सिपाही अर्तगल को जाकर बताता है कि मंगोलों ने हमला कर दिया है। अर्तगल उस सिपाही से कहता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। जब वो सिपाही जेल का दरवाजा खोल रहा होता है तो एक मंगोल सिपाही अंदर आकर उसे कत्ल कर देता है और फिर वो सिपाही अर्तगल को कत्ल करने की कोशिश करता है, मगर अर्तगल उसकी तलवार के आगे से हट जाता है। इसके बाद उस सिपाही कैद खाने का दरवाजा खोलकर कैद खाने में दाखिल हो जाता है और तलवार से अर्तगल पर हमला करता है, लेकिन अर्तगल उसके हाथ पे इतने जोर से मारता है कि उसके हाथ से तलवार गिर जाती है और फिर उस मंगोल सिपाही और अर्तगल के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है और फिर अर्तगल उस मंगोल सिपाही को कत्ल कर देता है। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखें कि गुंदुगदू बेशुमार मंगोल सिपाहियों के साथ सरदारी खेमे के सामने लड़ रहा है और बहुत से मंगोल सिपाहियों को कत्ल कर देता है। इसी दौरान अर्तगल भी खेमे से बाहर आता है और वहाँ एक सिपाही सरदार खुर्शीद पर हमला करने लगा होता है, लेकिन अर्तगल अपनी तलवार के साथ उसको रोक लेता है और सरदार खुर्शीद पर हमला करने वाले मंगोल सिपाहियों को कत्ल कर देता है और फिर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आप देखें कि हाइमा खातून के सरदारी खेमे में एक मंगोल सिपाही सलजान को जमीन पर गिरा लेता है और सलजान खातून को कत्ल करने लगा होता है, लेकिन आलिया पीछे से उस मंगोल सिपाही को खंजर मारती है, जिसकी वजह से वो सिपाही जमीन पर गिर जाता है और सलजान खातून उठकर उस मंगोल सिपाही को कत्ल कर देती है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि गुंदुगदू मंगोल सिपाही को कत्ल करने के बाद भागता हुआ सरदारी खेमे में जाता है। इसी दौरान खेमे में अर्तगल दाखिल होता है और वो सब हाइमा खातून की तरफ भागते हैं। सलजान खातून तबीब आरिफ से जाकर पूछती है कि अम्मी का क्या हाल है। तबीब आरिफ कहते हैं कि अल्लाह किसी को ऐसी मुश्किल में न डाले, एक तरफ हाइमा खातून की जिंदगी खतरे में है और दूसरी तरफ आप लोगों की। और फिर सरदार खुर्शीद गुस्से से अर्तगल को कहते हैं, ये सब मुसीबतें हमारे ऊपर लाने वाले तुम हो। सरदार खुर्शीद की ये बात सुनकर गुंदुगदू को बहुत गुस्सा आता है और वो सरदार खुर्शीद से कहते हैं, क्या आपको नजर नहीं आता मंगोलों के साथ हमारे मामलात मुख्तलिफ हैं। मंगोलों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्तगल मर गया है या तैमूर मर गया है। गुंदुगदू सरदार खुर्शीद से कहता है कि अपनी आंखें खोलें और हकीकत को देखें। इसके बाद अर्तगल गुस्से से खड़ा हो जाता है और सरदार खुर्शीद से कहता है, मामू बस कर दें, क्या आपको नजर नहीं आता क्या हो रहा है? मुझे चूहे की तरह पिंजरे में डालने के लिए आपने अपना पूरा जोर लगा दिया है। देखें, आप मेरे बाहर हूँ, अगर मैं चाहूँ तो आप कभी भी मुझे कैद नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी मर्जी से उस
उस पिंजरे में वापस जाऊंगा ताकि आपको और बाकी सरदारों को हकीकत नजर आ सके। अर्तगल कहता है कि मैं जिरगे में हिसाब दूंगा, जिस पर सरदार खुर्शीद कहते हैं कि जिरगे के बाद मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, और फिर वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गुंदुदू अर्तगल को क़याद वाले खेमे में छोड़ने के लिए जाता है और उससे कहता है अर्तगल हमें जल्द से जल्द तैमूर को कबीले लाना होगा। इस पर अर्तगल कहता है भाई तैमूर को अगर रास्ते में कुछ हो गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब अर्तगल और तैमूर ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो कराबेग का एक सिपाही खेमे के बाहर खड़े होकर ये तमाम बातें सुन लेता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि मेहरदीन, कराबेग और सरदार खुशनुद एक खेमे में बैठे हैं। कराबेग कहता है कि कल के जिरगे के बाद अर्तगल को सजाए मौत हो जानी चाहिए। अर्तगल की हर सांस गद्दारी और खून लेकर आती है। कराबेग कहता है कि इस हमले का जिम्मेदार भी अर्तगल है। अर्तगल की वजह से कबीला कमजोर हो गया है। इसी दौरान वहाँ गुंदुदू आता है। सरदार खुशनुद कहते हैं कराबेग दुरुस्त कह रहा है, अर्तगल मेरे बेटे का कातिल है। फिर सरदार खुशनुद कहते हैं कल मैं अपनी आंखों से अर्तगल की मौत देखूंगा। इस पर गुंदुदू कराबेग की तरफ इशारा करते हुए कहता है जब तक आप इस तरह के गद्दार अपने खेमे में बिठाएंगे आप मुश्किलात से दो चार होते रहेंगे। इस पर सरदार खुशनुद कहते हैं गुंदुदू तुम किसकी बात कर रहे हो? इस पर गुंदुदू कहता है मैं कराबेग की बात कर रहा हूँ। यह सुनकर कराबेग गुस्से से पागल हो जाता है और खड़ा होकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद कराबेग अपनी तलवार निकाल लेता है। इस पर गुंदुदू भी अपनी तलवार निकाल लेता है मगर मेहरदीन कराबेग को रोक लेता है। फिर गुंदुदू कहता है कि जब नोयान कुत्ता मेरे भाई के हाथ में कील ठोंक रहा था तो ये कराबेग बहुत खुश हो रहा था। इस पर मेहरदीन कराबेग से कहता है क्या ये सच है? इस पर कराबेग कहता है कि हाँ ये सच है, लेकिन मैं वहाँ अपनी मर्जी से नहीं गया था। मैं सादुद्दीन कोपेक के हुक्म के मुताबिक मंगोलों के साथ अमन मुआहिदा करने गया था। कराबेग कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो सादुद्दीन कोपेक से जाकर पूछ लो। कराबेग कहता है कि गुंदुदू अपने भाई को बचाने के लिए मेरे ऊपर ऐसे इल्जामात लगा रहा है, लेकिन कल जिरगे में इसके भाई का फैसला हो जाएगा। जिस पर गुंदुदू कराबेग से कहता है कराबेग जो तुम चाहते हो वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। फिर गुंदुदू गुस्से से वहाँ से चला जाता है और मेहरदीन कराबेग का गिरबान पकड़ लेता है। अब तुम बताओ क्या तुम सच कह रहे थे? क्या तुम्हें नोयान के पास सादुद्दीन कोपेक ने भेजा था? अगर तुम सादुद्दीन कोपेक के हुक्म से गए थे तो फिर मुझे ये क्यों नहीं बताया गया? इस पर कराबेग कहता है कि ये रियासत का खुफिया राज था इसलिए तुम्हें नहीं बताया गया। ये सुनकर मेहरदीन कहता है अगर तुम झूठ बोल रहे हुए तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। इसके बाद मेहरदीन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कराबेग के पास उसका वो सिपाही आता है जिसने गुंदुदू और वो सिपाही आकर कराबेग से कहता है कि शायद तैमूर जिंदा है। ये सुनकर कराबेग को झटका लगता है और कराबेग कहता है वो कहाँ है? जिस पर वो सिपाही कहता है मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ है। इस पर कराबेग उससे कहता है जाओ दफा हो जाओ और अपनी आंखें और कान खुले रखो और पता करो कि अगर तैमूर जिंदा है तो कहाँ है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे तंगूत कारवां सराय के मालिक के साथ और अपने सिपाहियों के साथ दीर दमीर के सामने खड़ा है और नशा और मशरूब पीने की वजह से दीर दमीर बेहोश है। तंगूत सराय के मालिक की तरफ देखते हुए कहता है कि शाबाश सराय के मालिक, और फिर वो सराय के मालिक को कत्ल कर देता है। इसके बाद तंगूत के सिपाही हलीमा सुल्तान के कमरे में दाखिल हो जाते हैं और हलीमा सुल्तान जो कि बेहोश हैं उनके हाथ और पांव बांध देते हैं और तंगूत और उसके सिपाही वो मालूमात तलाश करनी शुरू कर देते हैं जो सुमर तकीन ने भेजी थी। मगर इसी दौरान हलीमा सुल्तान को होश आता है और साथ दिल्ली दमीर को भी होश आ जाता है और वो अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।